Hi guys, in previous video we were dealing with the life process introduction. In today's video we will be getting the nutrition introduction, and in today's video we will be learning nutrition, then types of nutrition, and then in the next video we will be reading or learning photosynthesis. So let's start with nutrition. So nutrition, what is the basic definition of nutrition is that nutrition is the process intake and utilization of nutrients food by an organism in various life processes. So simple satik, nutrition is the process of intake. You take in the food and utilize it. So nutrition is the process of intake and utilization of what? So of food or nutrients by an organism. So very easy definition. So I've simplified the definition further for you. Nutrition, process of intake and utilization of food by an organism. Simple. Now the next is the substances that is needed to keep them living is called nutrient. So the food we intake is also called nutrient. So basically food is also known as nutrient. Done. Now various types of nutrients, different types of food that we consume. So some are energy foods, bodybuilding foods, regulating foods. Firstly, what are energy foods? Foods that provide energy to you. Simple. Bodybuilding foods, foods that helps in the growth of muscles. You have seen the bodybuilders, so they eat some sort of food, they focus more on proteins, वो ज़्यादा proteins bananas ये वो खाते हैं तो उनकी muscles बढ़ती है. So that's the thing, bodybuilding food. And regulating foods, foods that help you cure your illness. मतलब when you fall ill, जब आप जो है क्या बोलते हैं आजारी बुखार आता है, so to cure that illness, to give you more vitamins and to increase your immune system, you eat some sort of foods. So energy foods are like carbohydrates and fats. If carbohydrates, when you eat chapati, maida, they contain some carbohydrates which is also known as starch. So using that starch you get energy, and fats like in oils and such things. Now bodybuilding food, protein is like the most heard common name कि protein खाओ. So the same thing, protein and mineral salts. Then regulating foods में आता है vitamins you get from various types of fruits, then minerals. So when you eat such foods, you will be not, there are less chances that you will be falling ill. Now next is mode of nutrition, or there are different types of nutrition. This part is really important in the nutrition. So firstly nutrition is broadly divided. उन न्यूट्रिशन के दो मेन जो डिवीजन है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ये जो है दो सब डिवीजन है जो कि मेन है. अगेन देन उनके अलग अलग डिविजन्स होते हैं, बट ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक ये बहुत ही अलग ब्रांचेस है जो मेन ब्रांच है और सब डिवीजन है. हम जो यहाँ पर सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो देखो न्यूट्रिशन में सबसे मेन मैंने बोला कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक. अब एक एक को देखते जाएंगे तो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक. तो पहले देखो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है. प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड. सिंपल. और व्हेन एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है. एंड इसका सबसे बेस्ट एंड एक की मोस्ट एग्जाम्पल हमें दिमाग में आता है वो है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. दे do the process of photosynthesis in which they make their own food. So autotrophic, खुद का खाना खुद बनाना. It's not like you go in the kitchen and make the food. That's not autotrophic nutrition. When you make your own food in your body itself. So plant does that. So it is known as autotrophic nutrition. Next we saw is that heterotrophic nutrition. So heterotrophic nutrition यहाँ है. Mode of nutrition in which an organisms depend upon the other organisms for food to survive. Now best example human beings. हम human beings depend on other sources like plants. We eat vegetables, we eat grains. तो हम plants पर depend है, हम animals पर depend है. Okay, so we don't make our own food,
but we depend on other organisms for preparation of or for to survive for nutrition. But in the case of plants it's not the same, they prepare their own food. अब ऑटोट्रॉफिक में अगेन दो डिविजन्स हो रहे हैं, जिसमें पहला है फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक. सो let me just we'll clear the autotrophic part and we'll come to the heterotrophic part. So see here, autotrophic के two parts या two division, photoautotrophic and chemoautotrophic. Now what is photoautotrophic? ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सिंपल इजी. फोटो का मतलब आप जान लो, फोटो का मतलब होता है लाइट, सो इजी. एंड ऑटोट्रॉफिक का मतलब है प्रिपरेशन ऑफ फूड. तो आप लाइट की मदद से, मीन्स सनलाइट की मदद से हो, लाइट की मदद से हो, यू प्रिपेयर योर फूड. सो in photoautotrophic you get photosynthesis is dependent on light, so it is indirectly dependent on light. So photoautotrophic, you prepare your own food, you synthesize your own food with the help of light. सिंपल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है. एंड मोस्टली अगेन प्लांट्स आते हैं इसमें. देन कीमो ऑटोट्रॉफिक में एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस. तो दिस इज़ लाइक मोस्ट ऑफ दी एक्वाटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये कीमोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जहाँ पर डीप इन द ओशन, पानी में जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पर लाइट जो है पहुँच नहीं सकती. सो इन दैट केस हाउ दे विल ऑब्टेन द न्यूट्रिशन. सो वहाँ उनके आजू बाजू में जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनमें से वो जो है एनर्जी डिराइव करते हैं. अभी के लिए यहाँ पर एक आपको दिया है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया होता है जो डीप इन द ओशन रहता है, जहाँ पर लाइट जो है पहुँच नहीं सकती. सो इन दैट केस इट गेट्स इट्स न्यूट्रिशन, इट गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस जो उसके आजू बाजू में होती हैं, एंड ही डिराइव्स द एनर्जी फ्रॉम दोस. डन. तो यहाँ पर हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो डन है, जिसमें दो है फोटोट्रॉफिक, कीमोऑटोट्रॉफिक. अब हम देखते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 सब डिविजन्स है, जो कि सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक. ये 3 हमने हमेशा सुने. ऑटोट्रॉफिक शायद नए हो, बट हेट्रोट्रॉफिक इज लाइक नोन फॉर अस. तो सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक. सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक. नाउ पहले हम देखते हैं सैप्रोफाइटिक अगेन जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर हमारा न्यूट्रिशन निर्भर करता है. तो न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये जो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, डिकम्पोजर्स में होता है, कि जब भी डेड एंड डिकिंग मैटर होता है, जब भी कोई प्लांट मर जाता है, या फिर वी हैव वेजिटेबल का पीलिंग्स एंड ऑल दैट, व्हेन वी कीप इट असाइड, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं, एंड दे ऑब्टेन दैट न्यूट्रिशन. जो भी एनर्जी है उसमें से न्यूट्रिशन है वो दे टेक इट. So it is known as saprophytic nutrition, when your nutrition is depending upon the dead and decaying matter. Next is parasitic nutrition. Parasitic nutrition is again कि यहाँ पर saprophytic में आप dead and decaying matter के पर निर्भर कर रहे थे, बट इन पैरासिटिक यू डिपेंड ऑन दी अलाइव ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यहाँ पर डेड है, यहाँ पर अलाइव है. तो आपका जो होस्ट है, जहाँ से आपको खाना मिलने वाला है, वो एक अलाइव ऑर्गेनिज्म है, वो जिंदा ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, ऑर्गेनिज्म नोन एज पैरासाइट लिव्स ऑन द बॉडी और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म known as host and obtain nutrition directly from the body of the host. तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आपको पता होगा कि एनिमल्स पे, डॉग्स पे जो है पैरासाइट्स होते हैं कभी कभी उनकी स्किन में, जो कि उनका खून चूसते हैं, उसमें से वो क्या अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. वैसे इन ह्यूमन बींग्स लिक्स या फिर जो बाल में जुए हो जाते हैं उनको वो भी क्या करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन. हम हमारे जिंदा ऑर्गेनिज्म पर वो रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उन्हें कहते हैं पैरासिटिक. ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या फिर बॉडी के अंदर भी कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो न्यूट्रिशन लेते हैं. सैप्रोफाइटिक, दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर.
एंड होलोजोइक इज अगेन, ये वाला जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स करते हैं. मतलब न्यूट्रिशन दैट ऑकर्स इन द ऑर्गेनिज्म दैट इनटेक ऑफ सॉलिड और लिक्विड फूड इनसाइड द ह्यूमन. मतलब ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स जो है वो करते हैं. मतलब आप क्या कर रहे हो, इनटेक ऑफ सॉलिड फूड यहाँ पर ले रहे हो. मतलब आप ग्रेन, चपाती, ये सारे चावल वगैरह, ये क्या आपका इंटेक ऑफ सॉलिड फूड. देन जूसेस जो भी है आप बनाते हो, अलग अलग रेसिपीज, लिक्विड, तो इसे क्या कहते हैं हम, इंटेक ऑफ सॉलिड फूड. पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो है न्यूट्रिशन डायरेक्टली जो न्यूट्रिएंट्स है वो ले रहे हैं. ठीक है, पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम पहले खाना बना रहे हैं, इंटेक ऑफ सॉलिड फूड कर रहे हैं, उसको खा के हम डाइजेस्ट करके हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं. तो दिस इज़ ऑल मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फटाक से ये जो है फ्लो चार्ट रिकॉल करते हैं. न्यूट्रिशन के दो सब डिवीजन, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. हेटरोट्रॉफिक डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक. फोटो ऑटोट्रॉफिक में प्रिपेयर ओन फूड बाय द लाइट. ठीक है. देन हेटरोट्रॉफिक, फोटोऑटोट्रॉफिक में प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय लाइट. कीमोऑटोट्रॉफिक में गेटिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल रिएक्शंस. देन आता है हम हेटरोट्रॉफिक में, जिसमें आता है सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक. सैप्रोफाइटिक में द न्यूट्रिशन डिपेंड्स अपॉन द रेड एंड डिकेइंग मैटर. पैरासिटिक में व्हेन द पैरासाइट और द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द host organism which is alive and gets the nutrition directly from the host is known as parasitic nutrition. Or holozoic, intake of solid food or liquid to obtain nutrition is known as holozoic nutrition. And that's all for nutrition part. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस एंड अगेन देन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एंड सच थिंग्स. तो हमने जो है एक नोट ऑफ नोट्स क्या है, सप्लीमेंट जो है डन कर लिए. एंड दैट्स ऑल. स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो. बाय.